Good afternoon. So we started with the basics of economics yesterday, in which we discussed about the sectors of economy, basic types of economies, and we have done 3 types of economies. And then after we discussed the basics of a bit of like micro macroeconomics, how the things go on from the process of development and so on. Now we will slowly and steady will move to the particular topic, as we are going to start today with the national income. So before coming to the national income, as we know, national income is a total output we discussed yesterday, the total output produced by all 3 sectors of the economy by together. So all 3 sectors, we need to understand how many sectors are there, how they are contributing to the GDP. So starting with the sectors of economy, we are taking the first sector is to be a primary sector, secondary sector and tertiary sector, which is also called a services sector. Okay, so primary, secondary and a tertiary sector. So we need to understand how many things comes under the primary, how many comes of industry and the services. Primary sector are basically related to the, it's a tangible, and first of all it's tangible. The second thing is related to the natural resources. Whatever we can extract from the natural resources, that is somewhere somehow belongs to the primary sector. Like we can talk about agriculture, mining, we can say extraction of resources from underground, we can find out animal husbandry, we can say poultry farming, we can say fishery, we can say oyster cultivation, we say beekeeping, we say floriculture, we can say horticulture. Is sari, all the things comes under the utilization of land, natural resources. So these comes under the agriculture sector. Now they said that the first 2 things we need to understand. The one is it is tangible. It can be look at, we can check, we can touch, we can see. So these things which can be produced by our land or other resources, or we can extract something from the land also. Like mining is done by the coal extractions are coming from the land. So these things comes under the agriculture sector. Sometimes we got confused कि mining is a kind of industry. So is it should come into the industry or should come into the agriculture? So the process of forming the things can be an industry. Once I'll come to the industry, I'll let you know. Primary means whatever being produced by the land. चाहे वो horticulture है, floriculture है, oyster cultivation है, fishery, beekeeping, मैंने आपको examples दिए. Now the second thing we used to say, that is in a secondary sector. Secondary stands for all the industrial sector. So under industrial sector, it means the things which are under process, which are shifting the raw materials into the finished goods. That is considered to be a industrial sector. So it means you are changing the forms of raw material into the industrial goods. Like you have a cotton is being produced by agriculture sector, but you are making threads out of it. You are making fabric out of it. So this is called your industrial sector. You are finding some sugarcane, you are producing wheat, you are producing rice. They are processing the things and providing it to the able to use, able to consume. चीजें, hope you are comfortable with the same language. Should I convert into bit? You can say we can use agriculture sector के resources को हम industry में process करते हैं. जो हमें sugar cane production हुआ, wheat production हुआ, rice production हुआ, कोई भी XYZ beekeeping से bee production हुआ, हमारे पास fisheries आए, हमारे पास horticulture, floriculture से vegetables आए, flowers आए, उन सब का production हुआ. That is not for the final consumption. Some things can be finally consumed, something cannot be finally consumed. कुछ goods यहाँ से direct आके consume हो जाती हैं, like wheat, rice, but still we need to process it. Wheat need to process it for the wheat flour. Why rice is coming into the raw form? We need to clarify it and use it to the polished form. Then we can survive it for a long time period. तो product जिस form में आता है, sugar cane आ रहा है, we can consume it directly, or we can extract the juices and we can create a sugar out of it or jaggeries out of it. So processing जो भी कर रहा है उसके ऊपर, जो उसकी forms को change कर रहा है, raw material को final product में change कर रहा है, that is considered to be your industry goods. 8
sorry, food processing industries, you know. Though these 8 main core industries are there: electricity, cement, iron, steel, and electricity, railways. So these are the basic core industries which were being started into the second 5-year plan. I will let you know to one homework as well, जो आपको करके लाना है, वो इसी में से कुछ findings हम करेंगे. So that is the secondary thing that we have to discuss it, that how many sectors come into the secondary sector. Now we are coming to the tertiary sector. It's not tangible. We cannot touch, we cannot see, but it's just like a resources we are providing. Which kind of services are there? It could be IT sector, it could be a KPO sector, it could be a BPO sectors, it may be a banking, it may be insurance, it may be a transportation, it may be a communication, and so on, many things. Like this is also service sector. We are providing the facility which cannot be touched, which cannot be seen. Things are the words into the line. Lawyer is giving you the services, doctor is providing you the services. Medicine is an industrial good. Services are service sector, which is the consultation I am providing to anyone, that is a service sector. It's non-tangible. So इसमें हमारी सारी rest of industries आ जाती हैं. Industry होती वो industry है, लेकिन उसको हम कह service sector रहे हैं. Are you getting? Lawyers एक तरह सा profession है. Teachers is a profession. Ultimately they are under the profession, but ultimately you are giving you a services out of, which is non-tangible in nature. So that's the story of the 3 sectors of Indian economy. This is not of the Indian economy, just for the sectoral contribution. Now let's come to the India. We are saying these are the fixed things which is supposed to be done, which is supposed to be happen in the India. Now we are talking about, let's say, Indian economy got independence in 1950. So after 1950, by the time 2022 or 2023, we have shifted these sectoral contribution. Sectoral contribution का मतलब total GDP, total income, total national output में तीनों sectors का contribution था और आज भी है. उन तीनों sectors का contribution percentage की form में है. We are taking an example. अगर हम 100 rupees 1950 में भी बना रहे थे और 100 रुपीज आज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर कितना कितना दे रहा है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इनटू द पर्टिकुलर जीडीपी. सो वी कैन टेक अ डेटा ऑन द बिहाफ ऑफ 1950 and 2022. We can take on a 2023 data as well if it is provided or available on the net, because in the previous bit of the time period, like in 2020 or 1920, when that pandemic time period was there, that time period our agriculture sector started coming back. Earlier it was falling back. फॉलिंग बैक मीन्स का मतलब है पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट 50% जीडीपी जो है एग्रीकल्चर से आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी. अब वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है और कौन सा उसके प्लेस ले रहा है, सर्विसेज सेक्टर. सर्विसेज सेक्टर इज टेकिंग प्लेस ऑफ agriculture sector. So the data represents that there is a sectoral shift in Indian economy, and that is very much important to understand about the growth of Indian economy. Why? क्योंकि यही 3 सेक्टर हमारी जीडीपी को, टोटल आउटपुट को चेंज कर रहे हैं और इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं. I will take a bit of data from there so that I should not give you a, hope it is not gonna fluctuate. So we can say it is a primary, secondary and tertiary sector. 3 sectors are there. Earlier it was almost 56%. It's a decimals comes up there. 56% of GDP was coming from agriculture sector. अगर हमारी, obviously you know that it is coming of the total 100%. 100 में से डिवाइड कर रहे हैं ना कि 56% जो जीडीपी का आउटपुट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था, जो कि अब हमारा शिफ्ट होके 21% रह गया है. बट इन फ्यू सोर्सेज यू कैन फाइंड आउट 18% to 19% as well. This is the given data, which is not fixed data, but the economic survey of 2023, it's not clearing the thoughts. They are saying it is in between 18 to 19, जबकि 17% आ गया था 1990 में, 2019 में. पैंडेमिक के टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर ग्रो ज्यादा किया और सर्विसेज सेक्टर, इंडस्ट्रीज थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए, इसकी वजह से इसकी आउटपुट बढ़ गई. तो यू कैन सी द शिफ्ट. एग्रीकल्चर सेक्टर जो 100 रुपीज में 50 रुपीज प्रोड्यूस कर रहा था, आज वो डिक्रीज करके ओनली 21% प्रोड्यूस कर रहा है. So it means our agriculture sector, no doubt production has been increased. We have diversified our agriculture. पहले हम सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करते थे, wheat, rices, pulses.
ठीक है. Now we have changed the production to the all the organic products, all the new commodities, whatever is in the market. हमने जो एरिया जिस प्रोडक्ट के लिए नहीं भी है वहां पर भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगे. Soil testing we have changed, the chemical fertilizers we have changed, as we know first green revolution and second green revolution. So we have changed the productivity, still the output has been decreased. So this is the first thing about the agriculture sector or the primary sector which has shifted drastically. Second is our industrial sector. अभी ये तीनों डेटा जब हम बात कर लेंगे देन वी विल फाइंड वन कंक्लूजन आउट ऑफ इट. हम इसको वर्ल्ड लेवल के साथ भी कंपेयर करेंगे, अभी हम इंडियन डेटा के साथ बात कर रहे हैं. सेकेंडली वी सेड दैट इट वाज 15% share was coming out of from the industrial sector. Now it has come to be 24.6, 24.7, like of 25% almost. Coming from 1/4 of the GDP is coming from industrial sector. Third sector left out, that was negligible. Negligible means to say जो total compared to agriculture negligible था, बहुत कम था. That was 28.5% in 1950s. That has been shifted from 1950 to 53%. Getting my point? So this sectoral shift represents what? ये जो शिफ्ट हो रहा है टोटल 100 रुपीज में जो ये तीनों सेक्टर शेयर कर रहे थे अपना, वो जो शिफ्ट हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनीथिंग? इज इट शोइंग अ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी? इज इट? नो. डेवलपमेंट हो रही है कैसे? प्लीज. हाँ जी, प्लीज लुक एट द डेटा. इट इज ऑलमोस्ट द रिवर्सिबल. जहां हम 50% एग्रीकल्चर देता था, आज 50% से ज्यादा हमारा इंडस्ट्री दे रहा है, सर्विसेज सेक्टर दे रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट डबल हो गया. वी कैन से ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया एंड दैट इज अगेन अ डबल. वो रिवर्सिबल तो इन्हीं का हुआ ना कहीं ना कहीं. तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? No, India is having a 65% population is still rural. Only 35% is urbanization in India. So we haven't shifted to the more urbanized thing. Okay. अभी ये चीज हमें एक चीज तो बता रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, कोई भी इकोनॉमी जब भी वो डेवलपमेंट के पाथ पे जाती है, वी मूव फ्रॉम 1950, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट लाइक 73 इयर्स बैक स्टोरी. 73 इयर्स में हमने अपना सेक्टोरल शिफ्ट जो किया वो किसी भी इकोनॉमी ने किया होगा. हमने नहीं किया, सभी इकोनॉमी 70 इयर्स बैक हमारे साथ चली थी. जब भी कोई इकोनॉमी अपने डेवलपमेंट के पाथ पे चलती है तो वो अपने सेक्टर्स का शिफ्टिंग करती है, क्योंकि डेवलपमेंट होती है. डेवलपमेंट मीन्स resources, technology, information, we can say import exports, that leads to increase the horizon of economy and leads to increase the knowledge and capability of economy. उन सब की वजह से इनकम, आउटपुट, जीडीपी सब बढ़ने लग जाता है. तो हम पहले कहीं, अभी जीडीपी की बात करेंगे हम, डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर मैं वो डेटा यहाँ लेके आती हूँ. सो अल्टीमेटली दिस रिप्रेजेंट्स कोई भी इकोनॉमी जब भी डेवलपमेंट के पाथ पे चलती है, सबसे पहले एग्रीकल्चर ही होता है. जब भी हम अंडर डेवलप होंगे, कोई भी कंट्री है, यूएस है, जापान है, इंडिया इकोनॉमी है, पाकिस्तान इकोनॉमी, एनी इकोनॉमी, वी स्टार्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली. वो धीरे धीरे ही तो डेवलपमेंट होगी ना, आपको इंडस्ट्रीज बनानी आएंगी, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर बनाना आएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर ही होता है. जब आप डेवलपमेंट के पाथ पे जाते हैं, यू शुड शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज कर रहा है, फाइनल गुड्स बना रहा है, आपके इन फैक्टर्स को यूज करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को करने के लिए हमें सर्विस सेक्टर की जरूरत पड़ती है. वी हैव अ 1 hectare ऑफ लैंड नियर बाय मोहाली, वी आर प्रोड्यूसिंग जैगरी और वी आर प्रोड्यूसिंग शुगर केन ओवर देयर. सपोज हम वहां पर गन्ना उगा रहे हैं. अब वो प्रोडक्शन करके, वो प्रोडक्शन हुआ, वो क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर. हमें उससे क्या बनानी है? शुगर बनानी है. शुगर बनाने के लिए हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में चेंज करेंगे, वो इंडस्ट्री बनाएगी. लेकिन वो प्रोडक्ट को वहां पहुंचाएगा कौन? ट्रांसपोर्टेशन,
Communication, we will call a people that please come to our place, pick up our good and shift it to the mandi. वो कौन दे रहा है? Services. Services कौन दे रही है? Roads, communication, transportation, agents, the people those are sitting on this side, marketing, management, वो कौन है? सर्विस सेक्टर. इसका मतलब अगर आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे आए तो समवेयर समहाउ इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विस भी डेवलप होगा ही होगा, लेकिन एग्रीकल्चर तो होना चाहिए, उसको मार्केट तक पहुंचना चाहिए तो सर्विस आएगी. तो सर्विस इज अ थर्ड कंपोनेंट. इसलिए व्हेनेवर वी आर डेवलपिंग, first of all we should shift from agriculture to industry sector, and then after, because the industry is being flourished, you need to have more services and the services sector develops, क्योंकि सर्विस सेक्टर आपको और सोर्सेज देगी चीजों को और अच्छे से पहुंचाने का. अभी भी एग्रीकल्चर कब से हो रहा है, इंडस्ट्रीज बननी शुरू कब से हो गई, लेकिन अब जाके सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ जिसने फार्मर्स को उनके सेलिंग प्रोडक्ट को ऑनलाइन कर दिया, isn't it? तो वो सर्विस सेक्टर अब डेवलप हुई ना इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद. रोल यही रहता है, यू शुड शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड देन फ्रॉम इंडस्ट्री टू सर्विस सेक्टर. बट इंडियन इकोनॉमी ने यहां से सीधा यहां शिफ्ट किया. हम लोग ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इफ यू विल सी दिस डेटा फ्रॉम 1950 टू 2020, सारा ही डेटा, बीच का सारा डेटा भी अगर हम लें, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडस्ट्री बढ़ गई फिर इंडस्ट्री कम हुई. इंडस्ट्री इंक्रीज हुई 16%, 16.5, 17, 17.2, 17.5, वो पहुंच के 24 पे आई है और ये सीधा डबल हो गया. और एग्रीकल्चर सीधी क्लैप्स हो गई. रीजन कैन बी मैनी, वी नो दैट, वी आर द यंग जनरेशन. इसके क्लैप्स होने का रीजन हमें पता है. तो इंडियन इकोनॉमी ने जो शिफ्ट किया डेवलपमेंट का, वो डायरेक्ट किया, which is not a good sign actually. हमारी जो हमने कल आपसे बात की थी ना, we have some theories of development, we have some practical theories of development, कि कुछ तो इकोनॉमिक्स है जो रैंडम चल रही है, कुछ इकोनॉमिक्स क्या है जो बुक्स में लिखी हुई है, थ्योरीज लिखी हुई हैं कि किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे आना चाहिए, इंडस्ट्री से सर्विस पे आना चाहिए, तब आपकी ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ कंसीडर की जाती है, आप क्लैप्स होने के रीजंस कम रह जाते हैं. लेकिन हमने तो जंप किया, हमने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे आए. So, is our development is not actual in the nature? It is, but it is still in the doubts on the behalf of the theories. Practicality तो हमने देख ली कर, लेकिन उसकी theories के बेस पर कहीं ना कहीं अभी भी flaw है कि it may not gonna give you a long time returns. तो पहली बात, Indian economy GDP contribution is like this. Okay. Now after that, once we are talking about the growth rate of like US, they are producing 1% of the GDP from agriculture sector. सिर्फ 1% GDP उनकी एग्रीकल्चर से आ रही है, बाकी सारी इंडस्ट्री और सर्विस से आ रही है. चाइना की मैक्सिमम GDP कहां से आ रही है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रही है. So it means somewhere somehow that our contribution to the GDP and other nations' contribution to the GDP is varying, and because of this variation, the development process is variation. आप उस लेवल से दूसरी कंट्री भी डेवलप कर जाए, हमारे पास भी उतनी पॉपुलेशन है, चाइना भी हमारी जितनी पॉपुलेशन लेके बैठे, तो हम दोनों इकट्ठे डेवलप क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनका डेवलपमेंट प्लान अलग है, हम लोग का डेवलपमेंट प्लान अलग है. हम सर्विसेज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं. सो दैट इज द डिफरेंस. स्टिल यू शुड आस्क अ क्वेश्चन. प्लीज क्वेश्चन पूछा करो. जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे, हाउ वुड आई नो कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, until unless you will not ask a question, it means you are just looking at a picture. Movie is going on and you are not finding anything to be doubtful. Question क्या पूछना चाहिए था? उस टाइम तो हमारी पॉपुलेशन आज से आधी थी. हम 56% जीडीपी से लेके आते थे. आज हमारी पॉपुलेशन डबल हो गई और आज हम सिर्फ 20% जीडीपी उससे लेकर आ रहे हैं. और अब तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं. पहले तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं करते थे. एक्सपोर्ट इंपोर्ट कब स्टार्ट किया? 1990 में, एलपीजी की पॉलिसी के बाद. तो अब तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं. तो क्या हमारा जीडीपी क्या गड़बड़ है? ये कोई क्वेश्चनेबल चीज है? फूड तो चाहिए ना, चाहे अर्बन में हो चाहे रूरल में हो. हम आपकी बात समझ गए. आपसे ये पूछ रहे हैं कि आउटपुट तो कम हुआ ना, तो आउटपुट कम हुआ लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई. आपकी बात सही है कि
लैंड कम हो गई है ना, लेकिन लोग तो ज्यादा बढ़ गए और उतनी जगह पर ज्यादा लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है, फिर भी हम ठीक ठाक चल रहे हैं, नथिंग प्रॉब्लमेटिक। हाउ इज इट पॉसिबल? ईदर वी आर इंपोर्टिंग मच मोर, क्या हमारी इंपोर्ट ज्यादा हो गई है? देयर इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क, जो आपको पूछना चाहिए कि कम प्रोडक्शन करके भी आप पूरी इकोनॉमी को, डबल ऑफ पॉपुलेशन को कैसे सरवाइव करा रहे हो? गेटिंग? व्हाई? एनी आंसर? यस, प्रोसेसिंग. India is still on the food, homemade foods, not on processing foods. Productivity. प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, अभी वो हम एग्रीकल्चर का टॉपिक करेंगे। देन आई टोल्ड यू कि प्रोडक्टिविटी कितनी तरह की होती है। एक होती है पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, एक होता है पर लेबर प्रोडक्टिविटी। वही लेबर पहले इतनी बड़ी जमीन पे कम प्रोडक्शन करता था, अब वही लेबर उतनी सी लैंड पे डबल प्रोडक्टिविटी कर रहा है। तो आउटपुट प्रोडक्शन समवेयर समहाउ इज रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट स्टोरी, पर हेक्टेयर भी और पर लेबर भी, वो हम एग्रीकल्चर के टॉपिक में करेंगे। बट दैट क्वेश्चन शुड अराइज फ्रॉम योर साइड, यू शुड हैव अ क्वेश्चन कि व्हाई दिस थिंग इज गोइंग ऑन। ओनली लुक एट द डेटा, व्हाटएवर इज देयर, राइट डाउन एंड विल ratification in later on stage. Please don't do this, ask questions. Done? So this is the first story, that we have a different sectors and we have a different data from the different time period. Please look at the data once again. I'm going to ask you people, मैं आपसे 2 मिनट में पूछने वाली हूं कि डेटा क्या शिफ्ट हुआ है। चले, डन? अभी हम बात करते हैं वर्ल्ड एवरेज एंड इंडियाज एवरेज ग्रोथ रेट। वर्ल्ड एवरेज का मतलब, अभी देखो हम जो डेटा की बात करें, दैट वी हैव डन विद द रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया ओनली, दैट वाज टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब होता है किसी एक कंपोनेंट को लेके आप डिफरेंट टाइम जोन के बारे में जब डेटा बात करते हैं तो वो टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। तो हमने टाइम सीरीज एनालिसिस किया। अभी हम बात करेंगे विद द सेम टाइम जोन बट डिफरेंट वर्ल्ड इकोनॉमी का और अपनी इकोनॉमी का, कि हमारे में ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर कितना है और वर्ल्ड इकोनॉमी में एवरेज ग्रोथ रेट कितना है। एवरेज मीनिंग यू नो, एवरेज ग्रोथ रेट मतलब वी आर अ डिफरेंट कंट्रीज, आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 6% है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट आपकी कंट्री में पिछले साल जितना एग्रीकल्चर हुआ, इस साल कितना हुआ, उसका ग्रोथ कितना है। योर कंट्री, योर कंट्री, योर कंट्री, योर कंट्री, योर कंट्री, टोटल नंबर ऑफ ग्रोथ प्लस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, वो क्या आएगा, एवरेज ग्रोथ रेट। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके 10 मार्क्स है, 50 में से पेपर हुआ, आपके 10 है, आपके 20, आपके 25 है, आपके 40, आपके 10 है, आपके 2 है, सबको प्लस कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दो, सो वी विल गेट इट एवरेज, की आपकी क्लास का जो रिजल्ट एवरेज आ रहा है वो 25 आ रहा है। सो दैट इज द एवरेज ग्रोथ रेट। सो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में एग्रीकल्चर किस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ सर्विसेज सेक्टर। इसी तरह हमारी कंट्री में तीनों सेक्टर किस रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, दैट विल रिप्रेजेंट अस ईदर वी आर गोइंग इन द सेम पैटर्न एज द वर्ल्ड इकोनॉमीज आर गोइंग ऑन, क्या हम उसी रेट से बढ़ रहे हैं जिस रेट से वर्ल्ड इकोनॉमीज बढ़ रही हैं, कि उसमें कोई क्लैश है। वो हमें क्या बताएगा कि हमारी डेवलपमेंट और वर्ल्ड इकोनॉमी की डेवलपमेंट किस प्रोसेस में चल रही है। Getting? So that data represents 64%, 6.4% होगा, ये 6% तो नहीं होता, हाँ 6.4% and 63%. Primary, secondary, tertiary. This is the world average, and this is about India. 6.4% is growth rate. अभी हमारे वाला डेटा आप बताएंगे, प्लीज गेट अप। Would you please tell me what is the growth rate of Indian GDP growth percentage of India in primary sector? 21%, 24%, 50 ki 53, 53.89, 53%. So just check it out.
इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो 6.4% है पूरे वर्ल्ड में। हमारे पास शेयर क्या है 21%। सो कंपैरेटिवली वी आर इन बेटर स्टेट रिगार्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमीज। इंडस्ट्रीज का टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर 30% है, वी आर नियर बाय इट। Services are more, we are on more. So somewhere somehow we are moving into the same process in which the world economies are going on. But Indian economy is based on agriculture. हमारी इकोनॉमी शुरू से कौन सी इकोनॉमी कहलाती है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहलाती है। फिर भी हम शिफ्ट हो गए हैं सर्विस सेक्टर पे, बिकॉज इट इज अ नीड ऑफ आवर। वी कैन नॉट सर्वाइव इफ वी विल डू आर प्रोडक्शन ओनली एंड ओनली विद एग्रीकल्चर सेक्टर। ये वर्ल्ड इकोनॉमीज में हमने डिसाइड किया है और वी हैव सीन द एम्पिरिकल एविडेंसेस। जिस भी वर्ल्ड इकोनॉमी में जिस भी कंट्री का टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा होता है, वो इकोनॉमी उतनी बैकवर्ड होती है। जिस भी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता है, वो इकोनॉमी उतनी डेवलप होती है। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो कहां से ला रहे हैं? इंडस्ट्री और सर्विसेज से। एंड इंडस्ट्री एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडिंग यू मच मोर ग्रोथ रेदर देन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज समवेयर समहाउ एग्रीकल्चर सेक्टर इज बीइंग पॉइंटेड आउट और रिजल्टिंग आउट टू बी अ फुल स्टॉप। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के ड्रॉबैक्स इंडस्ट्री से ज्यादा हैं। द टू ड्रॉबैक्स एनीबॉडी कैन टेल मी? एग्रीकल्चर सेक्टर के आउटपुट के उतनी जल्दी बढ़ने के चांसेस क्यों कम है, जबकि इंडस्ट्री और सर्विसेज फास्टली ग्रो कर रही हैं? प्राइमरी सेक्टर सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। रॉ मटेरियल तो रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री को भी और सर्विसेज को भी। तो उसका प्राइस कम होता है। Environmental, climatal effects, yeah. The one reason is disguised unemployment. You must have, अभी हम unemployment का टॉपिक भी करेंगे। Disguised unemployment means to say disguised unemployment means छुपे हुए बेरोजगार, means today the people who supposed to feel like they are working but actually they are not working. There is a family who is a 5 family size, a 6th person comes into the family, 7th person comes into the family, they are also the part of the same agriculture. 10 लोग हो जाते हैं तो भी एग्रीकल्चर में है, 2 लोग हैं तो भी एग्रीकल्चर में। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। पूरी फैमिली ही एग्रीकल्चर है, जबकि आपका आउटपुट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। So number of people those are seems to be employed but actually they are not. Disguised का मतलब होता है छुपा हुआ, तो वो लोग छुपे हुए बेरोजगार ज्यादा हैं। अब जब 100 रुपीज का आउटपुट होगा, एक फार्म में 100 रुपीज का आउटपुट हुआ और उसपे 10 लोग लगे हैं, 10 लेबर लगी है, तो पर हेड कितना मिलेगा? 10 रुपीज। गेटिंग? अगर वही 100 रुपीज का आउटपुट हो रहा है और उसमें 20 लोग लग जाएं तो पर हेड कितना मिलेगा? 5 रुपीज। तो आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी तो लेस होती गई ना। जैसे जैसे लोग आते गए आउटपुट तो उतने का उतना ही हो रहा है, लेकिन आपके आने से आपको शेयर जरूर मिलेगा, आपका कंट्रीब्यूशन हो ना हो। सो दैट्स व्हाई इन एग्रीकल्चर सेक्टर द फर्स्ट प्रॉब्लम इज disguised unemployment. Second is, no doubt she answered very well, that is a climatal reasons. Monsoon is a major reason, irrigation facilities are major reason, which is not in our hand. We want to produce 1000 crores of ton, but actually we are not supposed to do, because if the climate is not in our favor, we are not supposed to produce. हमने टारगेट रखा था कि 20 टन प्रोडक्शन करेंगे, मॉनसून नहीं हुआ, ज्यादा हो गया, कम हो गया, फ्लाई अटैक हो गया, पेस्ट अटैक हो गया, तो हमारी प्रोडक्टिविटी फॉल डाउन हो जाएगी। सेकेंड रीजन, क्लाइमेटिकल रीजन। द थर्ड वन इज gestation टाइम पीरियड। एग्रीकल्चर में क्या है, आज अगर आपने सी को सो किया है, बीज को बोया है, सीड सो किया है, तो उसके आउटपुट आने के टाइम तक आप कुछ नहीं कर सकते। यू आर सपोज टू सिट एंड यू हैव टू वॉच व्हेन इट विल कम्स आउट। व्हेन इट विल कम आउट, यू हैव टू जस्ट गो स्प्रिंकल द पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एंड यू हैव टू सिट डाउन अगेन। Then you have to wait for when it is being finalized the product. जब वो फाइनल प्रोडक्ट क्रॉप तैयार हो जाएगी, then you have to cut down and to sell up to the market. वो 6 मंथ का gestation टाइम पीरियड आपको सर्व करना ही पड़ता है।
डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट पॉसिबल। इंडस्ट्री में पॉसिबल है। ये एक लैंड था, एग्रीकल्चर लैंड था। हम में से ये 5 लोग जो हैं, ये लोग काम करना चाहते हैं एग्रीकल्चर पे। फर्स्ट वाले को कहते हैं आप सीड सो करो, 2 लोग सीड सो कर लो और सब लोग बैठ के देखो, क्योंकि और कुछ तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता यू सीड सो द सीड, सेकंड विल स्प्रिंकल अ वाटर, थर्ड विल स्प्रिंकल अ फर्टिलाइजर, फोर्थ विल स्प्रिंकल अ पेस्टिसाइड, फिफ्थ विल कट द क्रॉप। एक टाइम पीरियड पे पॉसिबल नहीं है। Even though you are specialized in sprinkling the pesticide, आप स्पेशलाइज्ड हैं कट करने के और आप स्पेशलाइज्ड हैं सीसो करने में, तब भी आप सारे काम इकट्ठा नहीं कर सकते। Let's talk about this is an industry. Same land is of industry. We have some ready-made garments industry. हम आपको कहेंगे ये 3 लोगों को स्पेशलाइज्ड हैं कटिंग में, keep them aside. These are specialized in stitching, keep them aside. These are specialized in packing, keep them aside. These are specialized in marketing, make them channel. These are specialized in making our contacts, go for it. इसी इंडस्ट्री में, इसी जगह पर हम 4 कैबिन्स बना देंगे। आप लोग यहाँ पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट लो, आप यहाँ पे कटिंग करो, आप यहाँ पे स्टिचिंग करो, आप पैकिंग करो और प्रोडक्ट आज ही बाहर जाएगा। आप जब एक ही काम बार बार करेंगे, यू विल बी मोर स्पेशलाइज्ड। आप उतने ही काम को कम टाइम में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। आप इसी जगह को डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई द प्रोडक्टिविटी इज ऑन टाइम पीरियड और गेस्टेशन टाइम पीरियड के ऊपर लैग करती है। इंडस्ट्री में वो लैग नहीं है। गेटिंग? सो दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। सबसे बड़ा रीजन सॉइल, लैंड, फर्टिलाइजर्स हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी को फॉल डाउन कर रहे हैं। एंड द लैंड इज सम कमिंग्स टू द बैरल लैंड, बंजर भूमि होती जा रही है, कहीं पर वाटर लॉगिंग हो रहा है, कहीं पे सॉइल इरोजन हो रहा है। तो दीज कैन बी द रीजंस व्हिच इज डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टिल वी आर इन टॉप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, India is the first rank in the production of, can you give me the answer? Yes, India किस चीज के प्रोडक्शन में टॉप रैंक पे? Anyone? No. Yeah, we are on top in the milk production, and we are on second rank production of rice. Yeah, rice. एनीथिंग एल्स? और कौन सी चीज के प्रोडक्शन में हम सेकंड रैंक पे हैं? शुगर केन को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। राइस, शुगर केन, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, एंड वन मोर कमोडिटी इज देयर, दैट इज व्हीट, शुगर एंड फ्रेश वाटर फिश. That is again our top rank, second top rank India. So we have almost second in we can say wheat, rice, we have a sugarcane, sugar we can say a groundnut and the fresh water fish. इन सब में हम सेकंड रैंक पे हैं वर्ल्ड इकोनॉमीज में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में हम सिग्निफिकेंट प्लेस पे हैं। सिग्निफिकेंट प्लेस का मतलब होता है थर्ड रैंक पे या बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं जिस चीजों में, तो इट रिप्रेजेंट स्टिल इवन दो प्रोडक्टिविटी इज फॉलोइंग, स्टिल बी ऑन द टॉप रैंक्स इन मेनी ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब हमारी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। पहले ज्यादा जमीन होकर भी उतना आउटपुट नहीं होता था, कम जमीन होकर भी ज्यादा आउटपुट हो रहा है क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बीन इंक्रीज्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Same as in industry, in many of the commodities we are on top rank as well as we are in the services sector. So these are the 3 sectors of economy: the primary, secondary and tertiary. Their sectoral share with respect to present time period compared to previous time period as well as with the world economies. इंटरनेशनल लेवल पे क्या शेयर चल रहा है और हमारा क्या शेयर चल रहा है, एंड हाउ एग्रीकल्चर इज फॉलिंग बैक बिहाइंड टू द इंडस्ट्री एंड द सर्विसेज सेक्टर. इज इट ओके? ओके, एक 2 सेक्टर्स और हैं which is not to be considered as a sectoral part, but I need to give you a bit of hint because it may comes up into the any point of view. आपके पास वो आ सकता है, वो सेक्टर नहीं होते हैं बट उसको सेक्टर कंसीडर किया जाता है, which is not coming into any of that. Okay?
So that is called to be a quaternary. N-A-R-Y. Quaternary is a sector in which we are talking about R&Ds, in which we are talking about innovations, in which we are talking about technological development, in which we are talking about education itself. कोई ऐसा सेक्टर, वैसे तो ये सर्विस ही है, बट दे आर गिविंग अ बूस्ट टू द इकोनॉमी. ये जो क्वार्टनरी सेक्टर होता है ये इकोनॉमी को बूस्ट देता है, क्योंकि R&D जब तक नहीं होगा ना तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा ना ही सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट होगा. तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. एंड द लास्ट वाज इन क्वेनरी, QUINARI. Quinary sector is basically, it's a top level jobs. Top level jobs doesn't mean like you're talking about some we can say the government officials who makes plans, who makes policies, who makes some kind of a high level of jobs. That is coming to the quinary. And quaternary stands for research and development. ये sometimes it comes to be, पहले हम लोग 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की ही बात करते रहे हैं आज तक इकोनॉमिक्स में, बट समवेयर somehow they have added, I have gone through with the many of the papers, they have seen कि 2 वर्ड्स नए डाले हुए हैं. तो these are the 2. Otherwise a bit of the part I need to add up on, but I believe जब हम employment का टॉपिक करेंगे ना, अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उसमें हम करेंगे, जैसे हम कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि इससे आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये वाली जॉब तो जॉब है ना, तो इसको आपने अलग क्यों कर दिया. तो इट इज अ व्हाइट कॉलर जॉब एंड अ पिंक कॉलर जॉब एंड द ब्लू कॉलर जॉब. So these 3 colors of jobs are also there. That we will add upon once we'll talk about the employment topic. Please keep me in mind once we'll do it. So these are the 3 sectors plus 2 different sectors of economy. The top government policies and making of programs. और ये होती है research and development, I&D, innovations, technology and so on. So these are the basically where the economy is to be divided. Done? The corner seat, please get up. What is the share of service sector in Indian economy? Service sector का Indian economy में कितना % शेयर है? सर्विस सेक्टर का 53, इंडस्ट्री का, प्राइमरी का. प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? Floriculture, so on. Please visit it. Next you, tangible और नॉन टेंजिबल सेक्टर कौन कौन से हैं? सर्विस सेक्टर, प्राइमरी और इंटेंजिबल, नॉन टेंजिबल सर्विसेज. पहले दोनों tangible, which can be touched, which can be see, which can be look, that is tangible, and non-tangible stands for the third sector, that is the services sector. Can you give me what is the world share in agriculture sector? Very nice, 6.4%. That's it. So this is just a part of revision from your side, that how we have to go ahead. Now let's move to the next topic. Like अभी तक हम लोग ने ये किया कि ये तीनों सेक्टर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये चीज, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं ना, कमोडिटीज का प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं. अब ये गुड्स कितने टाइप की होती हैं? Before we are going through with the, because we are not gonna discuss with the demand and supply topic, that is to be a first part of your NCERT. So I'm gonna touch up of the bit of the topics over there, ताकि आपको थोड़ा सा गुड्स के बारे में पता चल जाए, ताकि डिमांड के चैप्टर में से आपका जो बस क्रक्स सा है वो मैं आपको यहाँ टच करूंगी. डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि वो कहीं आता नहीं पेपर में. आपको सिर्फ उसमें से जो रिजल्ट्स हैं फर्स्ट चैप्टर के डिमांड के, वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो गुड्स कैन बी ऑफ 2 types or 3 types or 4 types. Okay, let's see. Consumer goods, capital goods. Consumer goods क्या होती हैं? Which can be for consumption
एग्जाम्पल, फूड, क्लोथिंग, पेन, एनीथिंग, एप्पल, ऑरेंज, कुछ भी खाने पीने की चीजें जो है, दैट इज टू बी कंज्यूमर गुड्स. व्हाइल द कैपिटल गुड स्टैंड्स फॉर machinery, technology, tools, your infrastructure, building, that is a capital good. It is supposed to give you an income for a long time period. It will not provide you any income after once you consumed it. इसको एक बार खाया और खत्म हो जाएगी कंजम्पशन. ये कंजम्पशन ऐसी है जो आज अगर खरीदी तो it will like to increase the income for the long time period. मशीनरी है, वो रोज आपको इनकम जनरेट करके देगी. Done. So in that kind of goods we are consuming good and the capital goods. Afterward, yeah. जो कंज्यूमर गुड्स है वो फर्दर इफ यू विल डिवाइड, वन इज टू बी, नो इट्स नॉट ड्यूरेबल. ड्यूरेबल कैन बी ऑफ बोथ. ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है? जो लॉन्ग टाइम तक चलेंगी, है ना, जिनको इन्वेस्ट किया वो लॉन्ग टाइम चलेंगी. टीवी, फ्रिज, एसी, मशीनरी. तो इट कैन बी बोथ कंज्यूमेबल गुड्स एज वेल एज दैट्स आई एम टेकिंग इनटू बिटवीन. दोनों के बीच में मैंने लिया है कि जो दोनों तरह की हो सकती है कंज्यूमरेबल. ठीक है जी. देन ये दो तरह की आगे हो सकती हैं. रिन्यूएबल गुड्स मींस टू से जो रिन्यू हो सकती हैं, जैसे कि एनर्जीज, विंड, सोलर, वाटर. एंड नॉन रिन्यूएबल मींस कोल, ऑयल, पेट्रोलियम विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंड. है तो वो कंजम्पशन ही ना. पेट्रोल भी आज यूज किया और खत्म हो जाएगा, है तो कंजम्पशन गुड ही, लेकिन वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल. आपने एक बार लिया, कंज्यूम कर लिया, खत्म हो गया, वो दोबारा नहीं बन सकता. आपने ये एयर ली, वो दोबारा जनरेट है, वो यहीं पे रोटेट कर रही है. सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल गुड्स. फर्दर वी कैन डिवाइड इनटू द लग्जरियस गुड्स, नॉर्मल गुड्स, वो हम डिवाइड कर सकते हैं. नॉर्मल, लग्जरी, नेसेसरी. तीन तरह की गुड्स आई. नॉर्मल गुड कौन सी है? एनी XYZ कमोडिटी, जो भी आपको रेंडमली चाहिए होती है. लग्जरियस गुड्स, डायमंड्स, कार्स, कॉस्टली परफ्यूम्स, कॉस्टली गोल्ड, डायमंड, समथिंग लाइक दिस. एंड नेसेसरी गुड्स like medicines which is required, some air pumps to be required for the health. These things, spectacles, your dentures, your sticks, these are the required things जो आपकी नेसेसरी है, उसके बिना आप नहीं चल सकते हैं. इनका इफेक्ट हमारी डिमांड्स पे अलग अलग होता है. नेसेसिटी गुड्स का डिमांड पे क्या इफेक्ट है? प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए, कीप योर फोन डाउन, प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए, यू आर नॉट सपोज टू डिक्रीज द डिमांड. अगर सॉल्ट क्या है, सॉल्ट का प्राइस सस्ता होएगा, वुड यू लाइक टू बाय मोर? यू वुड लाइक टू बाय दैट मच क्वांटिटी ओनली. खाने में ज्यादा थोड़ा नमक डालेंगे अगर सस्ता हो जाएगा तो. शुगर, यू आर सपोज टू बाय अ बिट ऑफ मोर बट नॉट मच मोर. सो मेडिसिन्स सस्ती हो जाती है तो ज्यादा थोड़ी खानी है. नेसेसिटी गुड्स का डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होता कि प्राइस जितना मर्जी फ्लक्चुएट हो, आपको खानी खानी है. मेडिसिन चाहे 100 रुपए की हो चाहे 2 रुपए की हो, यू हैव टू कंज्यूम इट एंड दैट इज द सेम क्वांटिटी एज वेल. लग्जरियस गुड्स के साथ कैसा डिमांड है? You'll buy it at cheaper price. No, not at all. If the diamond becomes to be cheaper and everybody is wearing a diamond, how does it matter? फिर आपने पहना और मैंने पहना, फिर फर्क क्या हुआ? आपने आईफोन उठाया है और किसी ने नोकिया उठाया हो, तो फर्क किस बात का है? प्राइस का. यू आर शोइंग ऑफ बिकॉज यू आर हैविंग अ हायर प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन तो सेम है, लेकिन आप उसकी प्राइस की वजह से उसका शो ऑफ कर रहे हैं. तो लग्जरियस गुड्स वो होती हैं, वो जितनी महंगी होती हैं लोग उसके पीछे उतना भागते हैं. जितनी सस्ती हो जाएंगी, nobody will buy. Are you getting my point? सस्ती commodities, luxurious goods. अभी वही कार अगर नॉर्मल, I would say if a big car, any sedan car supposed to be comes to 5 lakh rupee, everybody will have the same car rather than a non-sedan, then why you will buy it? You will not buy it. You are buying it because it's costly. So luxurious goods हमारी डिमांड को रिफ्यूट करती हैं, उसको नहीं मानती हैं कि जब महंगी होएगी तो नहीं खरीदेंगे, सस्ती होएगी तो खरीदेंगे. नो, महंगी है तो ही खरीद रहे हैं, सस्ती होएगी तो नहीं खरीदेंगे. तो लग्जरियस गुड्स का डिमांड के साथ बिल्कुल रिफ्यूटेशन है, डिमांड के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है. ये कहता है प्राइस बढ़े, प्राइस कम हो, हमने डिमांड कांस्टेंट रखनी है.
उतनी ही मेडिसिन लेनी है, उतना ही सॉल्ट लेना है। नॉर्मल गुड्स क्या कहती हैं? इट इफेक्ट्स द डिमांड। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो दिस applies the demand factor, law of demand. It do not apply the law of demand. जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे प्राइस कम होगा डिमांड भी बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। बार साइन जो होता है वो कांस्टेंट का साइन होता है, तो वो डिमांड को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। आर यू गेटिंग द थ्री टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व्स? नाउ द फर्दर वी कैन से द लास्ट वन इज substitute and complementary. Substitute and complementary goods says, substitute का मतलब क्या होता है? Replaced. Very nice. Which we can be replaced with each other. Suppose there is a Coke and Pepsi that can be replaced to each other. दोनों 10 rupees की हैं, कोई भी दे दो, hardly matters, isn't it? And these are the substitute goods. तो substitute goods का हमें लेकिन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस का इफेक्ट जरूर है। कोक एंड पेप्सी, टू कमोडिटीज आर विद मी। अगर कोक अपने प्राइस को 2 रुपए कम कर देता है तो क्या होगा? जिसका प्राइस, shall I remove the upper part? We have a Coke, we have a Pepsi. Done? हमने कहा अगर प्राइस ऑफ कोक इंक्रीजेस, सबसे पहले क्या होगा? इसकी डिमांड हटेगी। ये भी 10 का था, ये भी 10 का था, इन्होंने अपना प्राइस 15 कर दिया, मैंने इंक्रीज कर दिया, अभी डिक्रीज भी करके बता देंगे। अगर इनका प्राइस 15 हो जाता है तो व्हाट विल हैपन? सबसे पहले डिमांड ऑफ कोक डिक्रीज हो जाएगी, फिर आप क्या लेंगे? You'll go for Pepsi. So you will increase the demand of Pepsi irrespective of price of Pepsi is constant. Price Pepsi वालों ने अपने प्राइस में चेंज नहीं किया, लेकिन उनकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई। Are you getting it? So these are प्राइस इसका बढ़ा, डिमांड इसकी बढ़ गई। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। किसी की वजह से मेरे को इफेक्ट हो गया। आप इसका रिवर्सिबल बता सकते हैं? इसका रिवर्सिबल मतलब प्राइस कम कीजिए और मुझे ये सारी स्टेटमेंट बताइए। नहीं, आप यहीं से बताइए, जैसे जैसे ये चल रहा है। अगर पेप्सी का प्राइस, सॉरी कोक का प्राइस कम होता तो सबसे पहले कोक की डिमांड बढ़ जाती, क्योंकि लोग कोक लेने लग जाते हैं तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाती, जबकि पेप्सी ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया। सो दिस इज अगेन अ रिवर्सिबल इफेक्ट, इज कॉल्ड योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। डन? सो ये आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गई। आपको एग्जांपल और दे सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड का? नोटबुक, अगर हम नोटबुक एक क्लासमेट की ले रहे हैं, एक किसी और कंपनी की ले रहे हैं, तो उसके प्राइसेस बढ़ गए। यू आर टेकिंग बोथ ऑफ द कंपनीज। टी एंड कॉफी, बट वो उसको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाता, बिकॉज वंस यू विल गो फॉर अ कॉफी एंड ही विल से नो कॉफी इज अवेलेबल, टेक अ टी, वी विल टेक इट। अगली बार फिर जाओगे कॉफी दो, कहेंगे कॉफी नहीं है, टी ले लो, you may take it, but not the third time. You will refuse to buy a coffee once and repeatedly the things are going on. So कुछ चीजें होती हैं जो सेम ब्रांड, सेम कमोडिटी की होती हैं, जो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहां से शुरू हो रहा है, कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट्री, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब जो दो चीजें मिलके हमारी डिमांड को पूरा कर रही हैं। Hope you have a phones and the SIM card. If you are having a phone but you don't have a SIM card, does it work? You have a car, you don't have petrol, does it work? No. So complete का मतलब दो चीजें इकट्ठे मिलके डिमांड को पूरा करेंगी। ठीक है, let's take an example. I have a car and petrol. Done. अभी हम लेते हैं प्राइस ऑफ कार इंक्रीज, क्या होगा? कार महंगी होगी तो क्या करोगे? सबसे पहले डिमांड फॉर कार कम हो जाएगी। व्हेन यू डिक्रीज द डिमांड, वुड यू लाइक टू बाय पेट्रोल?
you will decrease the demand of petrol will decrease. अभी क्या हुआ, इसका प्राइस बढ़ा, इसकी डिमांड गिरी. ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इसका रिवर्सिबल है. आप मुझे इसका रिलेशनशिप बताइए जरा, कैसा रिलेशनशिप था? पॉजिटिव. यहाँ रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव. सो यू मस्ट बी अंडरस्टैंड, दिस क्वेश्चन मे कम इनटू द पेपर. सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि नेगेटिव इफेक्ट होता है? आपको ये दोनों चीजों के ये इफेक्ट्स पता होने चाहिए. डन. Substitute goods are having positive demand effect and the complementary goods are having negative demand effect. Getting my point? So these are the types of goods, types of commodities we have. Then alternative methods to measure the types of goods. Luxurious goods, complementary goods, necessity goods and so on we have discussed. तो इस वाले पार्ट में हमने डिमांड वाला चैप्टर थोड़ा सा कवर कर लिया. Getting? Shall I? Okay. I need to start with the national income, but a bit of part is being explained more. चलो कोई बात नहीं, इसको आपका डिमांड का चैप्टर इसमें थोड़ा सा कवर हो जाएगा. हम चाह तो डिमांड नेशनल इनकम पे ही रह रहे हैं आना, बट अब हम आ रहे हैं नेशनल इनकम पे, क्योंकि अभी हमने क्या बात की, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थे. तीनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मिलकर क्या कर रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं. जब आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे तो फिर हमने गुड्स की बात की कि कौन कौन सी गुड्स प्रोडक्शन करते हैं. नाउ दे सेड दैट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इनटू द इकोनॉमी, दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय 3 सेक्टर्स, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर. किसी भी इकोनॉमी में 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट. अभी भी यहीं पर 3 लोग हैं. द प्रोड्यूसर मीन्स टू से लाइक अ प्रोडक्शन हाउस, कंज्यूमर स्टैंड्स फॉर अ households and the government stands for who is the mid of between, who is managing the things towards together. तो 3 तरह की चीजें हैं. And what we do, we used to buy things from producer. We कौन है? Consumer. Consumer buy things from producer और उनको बदले में क्या देते हैं? प्रोडक्ट का प्राइस देंगे ना, जो चीज खरीदी उसका पैसा देंगे. एंड व्हाट वन मोर थिंग वी यूज्ड टू डू, we used to they used to hire some factors from us. देखो हमारा वेरी नाइस. सो हमारा प्रोड्यूसर के साथ 2 तरह का टर्म्स होता है. वन टर्म इज लाइक वी आर बाइंग कमोडिटी और कमोडिटी के बदले पैसे. हमने कमोडिटी ली और कमोडिटी के बदले पैसे दे दिए, दैट्स इट. हमारा प्रोड्यूसर के साथ ये रिलेशनशिप था. लेकिन उस प्रोडक्शन को करने के लिए उसने हमारी ही हेल्प ली थी. क्या? हमारी लैंड ले ली, हमारे वर्कर, हमें एज अ वर्कर रख लिया, हमारे से पैसा उधार ले लिया, कैपिटल ले लिया. सो उसके बदले में क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम स्टैंड्स फॉर, कल हमने बात की थी, लैंड स्टैंड्स फॉर वेजेस, लेबर स्टैंड्स फॉर वेजेस, लैंड स्टैंड्स फॉर रेंट, कैपिटल स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो हमारे ही फैक्टर्स को फैक्टर इनकम की टर्म में वापस कर दिया. दिस इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हाउ द मनी और द इनकम और द रिसोर्सेज मूव्स इनटू अ सर्कुलर मैनर. हम ही प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करके गुड्स हम ही खरीदते हैं. तो ये सर्कुलर फ्लो में मनी जो है, इनकम जो है, कमोडिटीज जो हैं, गुड्स जो सर्विसेज हैं, वो सर्कुलेट होती रहती हैं. डन. ये किस किस के बीच का रिलेशनशिप है? बिटवीन वी एंड द प्रोड्यूसर, हाउसहोल्ड्स और प्रोड्यूसर्स के बीच का. ये है 2 सेक्टर इकोनॉमी जहां गवर्नमेंट नहीं था. नाउ देयर कम्स अ गवर्नमेंट इन बिटवीन. किनके? दोनों के बीच में. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए किसके ऊपर? हमारे ऊपर भी और प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी. एंड दे आर टेकिंग रिटर्न आउट ऑफ इट. हमने टैक्स दिया ना, तो मनी इज गोइंग आउट ऑफ पॉकेट. प्रोड्यूसर ने टैक्स दिया ना, तो money is going out of the pocket. What government is providing us? Government is providing us to the producer. Government is providing some subsidies. और हमें क्या दे रही है गवर्नमेंट?
कुछ भी नहीं. Government is providing us. Come on, government is providing us so much things. Please don't say that. Which kind of subsidy you're getting? Being as a normal man, we cannot find out any subsidy or from anywhere. Sorry? Good Kamal, what we are getting from the government? Sorry, I'm not getting you. Can you speak loudly? Which kind of services? Which Government employee provider. employment? But for the employment, we are getting salaries, no? Government schemes, no doubt, and that is depends upon which category you lies, whether you are getting that subsidies or not, whether you are getting the benefit of that schemes or not. Chalo, let it be. We are taking कि government is providing the other facilities as well. कैसी education, health facilities, transportation facilities. Government is providing infrastructure to you. आप क्या कोई डैम या ब्रिज बना सकते हैं? आप क्या कोई स्कूल हॉस्पिटल खोल सकते हैं? हाँ जी, लेकिन आप अपने बेनिफिट के लिए खोलेंगे. आप सोशल सर्विस के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे. अगर आप एनजीओ भी बनेंगे तो उसमें से आप बेनिफिट लेंगे. Sorry to say. So ultimately, we are not supposed to come up as a social welfare. Government is there who is providing a social welfare. तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू. इसी तरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडीज एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्री सेक्टर को, सर्विसेज सेक्टर को, जिन पे टैक्स लगाती है. एग्रीकल्चर को सब्सिडी दे रही है जो वो हैं सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आपको सीड्स दे रही है. So that is being provided. गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेता है जीएसटी का और कुछ ना कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है. तो these are the things that is being communicated or being circular manner between we people and between the government as well. Are you getting the things? So from there हमें एक चीज और पता लगी. पहले हमने सेक्टर्स की बात की. सेक्टर्स ही मिलकर आउटपुट करेंगे. Then we said that we are coming to the goods. Because goods are being produced, ultimately output ही हो रहा है. Output का मतलब commodity बन रही है, commodity का मतलब goods है. तो हमने goods की बात की. फिर हमने कहा कौन-कौन लोग, which channels are being indulged into the production. These are the households, producers and the government. उनका रोल प्ले किया. अभी चाहें तो इसके अंदर एक और रोल ऐड कर सकते हैं. Market in the sense of मार्केट इन द रियल टाइम. आज के टाइम में मार्केट का मतलब कोई जगह नहीं है. वी आर बाइंग ऑनलाइन, वी आर सेलिंग ऑनलाइन. सो मार्केट इज नॉट सपोज टू बी अ प्लेस. तो वो कौन है बीच में? कौन है? कौन है? हाँ, आप बताएं कौन है? सेलर्स भी कौन है? या तो वो कंज्यूमर है या वो प्रोड्यूसर है. आप एक शॉप खोल के बैठे हैं, आप होलसेलर से कमोडिटी लेके आते हैं. यही आप कह रहे हैं ना. प्रोडक्शन किसने किया? होलसेलर ने किया. आपने प्रोडक्ट लेकर आए, आपकी मार्केट में शॉप है. आप यही कह रहे हैं मार्केट है, मार्केट में शॉप है. मार्केट में शॉप, आप रिटेलर हैं, आप भी तो प्रोड्यूसर ही हैं. आप भी तो प्रोडक्शन चैनल में ही लगे हुए हैं. कोई बात नहीं, आप सर्विस दे रहे हो. आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो कि सर्विसेज सेक्टर हो? हाँ, पहले आप ये एग्जांपल बताइए. वो तीनों सेक्टर वापस आ गए. आप एक शॉप खोल के बैठे हैं वेयर यू आर सेलिंग योर कमोडिटीज. आप प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है कि टर्शियरी सेक्टर है? आप टर्शियरी सेक्टर हैं. आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एजेंट हैं, तो आप उसकी सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं. होलसेलर की प्राइस से रिटेलर प्राइस पे बीच का बेनिफिट आपका है. आपने ना प्रोडक्शन किया, ना आपने एग्रीकल्चर किया, ना फिनिश गुड्स बनाई. आपने सिर्फ सेलर को सर्विसेज प्रोवाइड की. कंज्यूमर को कमोडिटी पहुंचाने का रास्ता बने. You are a service provider. Getting? So you are a service sector. So in between the service sector works on. अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि is a producer, consumer, government. इसके बीच में ना बैंक्स भी आ जाते हैं. बैंक्स क्या करते हैं?
टेकिंग मनी एंड प्रोवाइडिंग मनी, सबसे हमसे सेविंग्स लेते हैं, हमें लोन देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को सेविंग्स लेते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देते हैं, बैंक को, आरबीआई को, गवर्नमेंट को पैसे लेते हैं और पैसे देते हैं। जो ये बैंक का और आरबीआई का रिलेशनशिप है, दैट वी विल डिस्कस इनटू मॉनेटरी पॉलिसी। वो हम एक और टॉपिक करेंगे जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे कि मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी कहां से आती है। वी जस्ट स्टार्टेड विद दैट थिंग ओनली, वो हम लोग एक और टॉपिक में बात करेंगे। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हाउ द मनी सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी। ओके, shall we start with the national income? You have a capacity to have? Let's have a sip of water, then we will start. ठीक है? Any data or anything you required, you can ask me later on. I'll just drop it into. They have a group, any WhatsApp group or something like that. So I'll drop it over there if they will be the part of it. Okay. So now we are starting with the national income. It's a big topic, no doubt, and now we are saying what is the national income? It is the sum total of all the goods and services produced by a country within the territory within the one financial year. Done? तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट में से क्वेश्चन बन के आता है, दे में कट डाउन फाइनेंशियल ईयर की जगह कैलेंडर ईयर, दे में कट डाउन विद इन द टेरिटरी को कट करके बिटवीन द टेरिटरी, आउट ऑफ द टेरिटरी। तो एक नेशनल इनकम के स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बन सकता है कि तीन कंपोनेंट्स एडिट करे हों, कोई एक कंपोनेंट गलत डाला हुआ हो, तो you have to find out which is a false statement. Are you getting? So this can be the first question, like what is the national income? It's the production of goods and services within the country. Within the country means to say, we'll talk about NDP. If we'll go for NNP, then we are coming out of the nation. Ready? So the first question comes out, national income calculate करना शुरू कब किया? National income, देश की income, when we consider it as a देश, only then we have started it. But we have two ways to calculate it. Pre-independence and the post-independence. हमने national income को calculate करने का two ways से start किया. That was in a more authentic when we started making policies, programs. Some authority was there, some committees were there. कोई data collection करने वाले लोग आ गए थे. वो हमारा more authentic source था. But we started a pre-independence as well. हमने independence से पहले भी national income को calculate करना शुरू कर दिया था. So it was started a very first time by दादा भाई नरोजी, जिन्होंने पहली बार national income को calculate किया. It was 1867-68. First time 1867 and 68. Dada Bhai Naroji was there who started calculating the national income. You can recall that name as a, who is the elder one at the house? The grand old man, है ना? घर में सबसे बड़े कौन होते हैं? The grandparents. So he was the initial person who started calculating national. दादाजी ने सबसे पहले start किया था national income को calculate करना. So your grand old man is considered to be a Dada Bhai Naroji. He started calculating a national income in 1966, 67, 68. After that, many economists come forward, जिन्होंने national income को calculate करने के लिए अपने अपने ways and means बताए थे. I can take an example of Joshi, Wadala, and V.K. R.V. Rao. One more there was in between, Shah. These were the people. He was the initial one, he's a starting one.
the main person who started. Then many people comes up. These are the different name. I'm just taking a prefix. उनके नाम में सिर्फ surnames दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे. Joshi, Wadala, Shah, and V.K. R.V. Rao. He was the first man who started making a scientific calculation of national income. ये लोग तो डेटा कलेक्ट करके बस रैंडम डिस्कशन करते थे. इन्होंने पहली बार जो मेन था साइंटिफिक मेथड ऑफ कैलकुलेशन लगाया था. व्हाट दे वर एक्चुअली ही स्टार्टेड इन 1931-32. इनका ईयर था 1931-32. ये 80s में स्टार्ट किया. ये नियर बाय ऑफ योर इंडिपेंडेंस के हैं. अभी ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नेशनल इनकम मेथड किया. अभी हम पोस्ट इंडिपेंडेंस डिलीट करते हैं. अभी इसी को डिस्कस कर रहे हैं. What was the method they adopted? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इन लोगों ने मेथड कौन सा अडॉप्ट किया? What the दादाभाई नौरोजी did? उन्होंने एक अनऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा, अनऑथेंटिक वे ऑफ डूइंग कलेक्शन ऑफ डेटा. He said that एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर. इसकी टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लो और प्लस कर दो कोई भी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम को, वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी. तो दे हैवंट डिवाइड द इकोनॉमी इनटू द सेक्टर्स जैसे हम आज कर रहे हैं. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, 100 में से कितना पार्ट. दे डिडंट. दे जस्ट सेड दैट क्योंकि उस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था. So they said that whatever is income coming from the agriculture sector, that is supposed to be the national income. And if any other small scale industry or railways were there और हमारी कुछ industrial revolution जो हुआ उसकी income add कर दो, that is considered to be your national income. So it was somewhere somehow not scientific, not authentic. Data collection कौन कर रहा है, data कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं पता था. But only national income was calculated. Then in started first in 1932. अभी इसके बाद फिर हमारे वीके आरवी राव आए जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट शुरू किया. ही डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कैपिटलिस्ट सेक्टर. इस कैपिटलिस्ट वर्ड इज यूज्ड, कॉर्पोरेट सेक्टर, सॉरी. इट इज अ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर. उन्होंने इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर. एंड व्हाटएवर इनकम इज कमिंग वो कहते थे 2 ही सेक्टर से आती है. जो एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आ रहा वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो सर्विसेज हो. तो इन्होंने इन दोनों के टोटल को नेशनल इनकम कंसीडर किया. डन. और इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए उन्होंने इनकम मेथड लगाया, इसके लिए उन्होंने एक्सपेंडिचर मेथड लगाया. मेथड्स अभी आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि हमें अभी मेथड्स मालूम ही नहीं है. वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स, देन विल कम टू द पॉइंट. सो अल्टीमेटली यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर इंडिपेंडेंस दादाभाई नौरोजी 1867-68 उन्होंने मेथड कौन सा यूज किया? एग्रीकल्चर इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम. If any rest of is there, it is considered to be non-agriculture sector, and that is to be total of national income. Then there comes to be Shah, Wadala, and Joshi, and V.K. R.V. Rao. V.K. R.V. Rao comes in 1931-32. That was a scientific method. उन्होंने कोई टेक्निक लगाई, ऐसे रैंडम सा नहीं कैलकुलेशन किया. उन्होंने इकोनॉमी को 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर. एग्रीकल्चर कम्स टू बी ऑल द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. अलाइड एक्टिविटीज क्या होती है? वो सारी एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग एंड हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सो ऑन, सारी की सारी. प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर मीन सारी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम इंडस्ट्री, प्लस सर्विसेज सेक्टर, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, प्लस कम्युनिकेशन, बैंकिंग, हर कुछ को कॉर्पोरेट में डाल दिया और उनकी इनकम को उन्होंने नेशनल इनकम कंसीडर किया. सो दैट वाज द सिचुएशन बिफोर इंडिपेंडेंस व्हिच इज बीइंग टेकन एज अ इनिशियल ईयर्स. अभी हम इनके बिहाफ पर दादाभाई नौरोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं नेशनल इनकम को. उन्होंने जब स्टार्ट किया था 1950 वाला करेंगे, चलो छोड़ो इसको. सो प्री इंडिपेंडेंस हमारी ये सिचुएशन थी इकोनॉमी की. नाउ वी आर कमिंग टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस. पोस्ट इंडिपेंडेंस अभी देखिए
1947 से रिसेंटली किसका एक्सप्लेनेशन चल रहा था? वीके आरवी राव। 31 तक तो वही कर रहे थे ना लास्ट में, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी एंड द लास्ट वन वाज वीके आरवी राव। तो उन्होंने क्या किया, वीके आरवी राव को मेन माना, जो उनका कमेटी का पार्ट बने, और हमारे 2-3 इकोनॉमिस्ट नए थे जिनको ऐड किया, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग अ न्यू कमेटी टू परफेक्टली फाइंडिंग द नेशनल अकाउंटिंग कमेटी, नेशनल कैलकुलेशन कमेटी, जो हमारी डेटा को कलेक्ट करेगी और इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेगी। सो फर्स्ट वन वाज इन 1949, 47 में इंडिपेंडेंस मिला, 49 में स्टार्टेड मेकिंग अ नेशनल इनकम कमेटी, हमने नेशनल इनकम कमेटी बनाई। उस कमेटी के जो हमारे मेंबर्स थे, वन वाज आर द फर्स्ट वन इज महानोबिन्स। ये हमारी, अगर आप प्लानिंग पढ़ेंगे ना, हम प्लानिंग का टॉपिक करेंगे, प्लानिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है महानोबिन्स का। तो महानोबिन्स थे एक सबसे पहले इकोनॉमिस्ट, देन वीके आरवी राव, जिनको हमने उसके अंदर ऐड किया हमारी कमेटी के अंदर, और 3 चेयरपर्सन्स वर देयर, दैट वाज इन वीके आरवी राव, जोशी, वडाला, एंड द सेकंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कम्स टू बी महानोबिन्स एंड गाडगिल। वन मोर आई जस्ट रिमेंबर फॉरगेट। 1949 में हमारी नेशनल इनकम कमेटी बनी, एंड इसमें महालोबिन्स एंड वन वाज गाडगिल। ये 3 लोगों ने मिलकर हमारी नेशनल एंड प्लस 3 अदर पर्सन हमारी ये कमेटी बनी, नेशनल इनकम कमेटी, जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेगी, अकाउंटिंग करेगी। ठीक है जी। अब इन्होंने, क्योंकि मेथड किसका यूज किया था, इनको हेल्प लिया ना, प्रीवियस वही चल रहे थे, तो इन्होंने इनकी हेल्प ली, तो इन्होंने इनके बिहाफ पर ही वही इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर के मेथड के बिहाफ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम पीरियड वी वर स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय महानोबिन्स एज गाडगिल एज वेल एज द वीके आरवी राव। तो ये हमारा नेशनल इनकम अकाउंट्स को कैलकुलेट करने की फर्स्ट कमेटी विच इज 1949 वी स्टार्टेड, एंड दे वर द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। डन। अब इस कमेटी का जो हमारा मेन रोल था, उन्होंने कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की, एंड व्हाट दे एक्चुअली वांटेड टू बी अ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। व्हेनेवर वी स्टार्टेड नेशनल इनकम, दे सेड दैट इंडिया की नेशनल इनकम जब हमने इंडिपेंडेंस लिया, दैट वाज ऑफ रुपीज 8710 national income, obviously crores, not in 100, and our per capita income was 225 rupees. हमारी नेशनल इनकम थी 8710 करोड़ रुपीस, एंड योर पर कैपिटा इनकम वाज 225 रुपीस, सिर्फ 225 रुपए पर कैपिटा इनकम थी। खैर अभी तो 1,28,000 है, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग इट, सो 225 वाज रुपीस, इट मींस पीपल वर नॉट गेटिंग 20 रुपीस। तो लोगों को 20 रुपए भी नहीं मिल रहे थे। अगर आज 1,28,000 रुपए और आपको 20,000 नहीं मिल रहे, तो ऑब्वियसली 225 रुपए में से भी लोगों को 20 रुपए नहीं मिल रहे थे। बट दैट वाज जस्ट अ कैलकुलेशन ऑफ द मेथड्स व्हिच वी फाइंडिंग दैट हमारी फर्स्ट रिपोर्ट इन 1950 में हमारे पास ये नेशनल इनकम 49 में बन गई ना कमेटी, 50 में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो 50-51 में हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ये थी। जबकि अगर दादा भाई नौरोजी के टाइम पे बात करें, वैसे उसका कोई मतलब नहीं है, भी 1980-70s में हमारी नेशनल इनकम क्या थी, दैट वाज ओनली ₹20। तो उस टाइम जब पहली दादा भाई नौरोजी ने बनाई ना, तब हमारी पर कैपिटा इनकम थी 20 रुपीज और नेशनल इनकम थी आई बिलीव 340 रुपीज, 40 रुपीज नहीं, 340 करोड़ रुपीज। तो दैट इज सपोज टू बी डन पहली कैलकुलेशन, पहली बार जब नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया। और ये वाला है कि जब हमने फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस कैलकुलेट किया। डन। सो अब इसमें से आपको सिर्फ जो चीज याद रखने वाली है, आई बिलीव दैट इज दिस मच, और इट मे बी कम अप टू दिस मच। आपको पता हो कि पहली बार नेशनल इनकम जब कैलकुलेशन हुआ, दैट वाज कंसीडर्ड टू बी 225 रुपीज इन इंडियन इकोनॉमी। ये स्टेटमेंट बनती है। इंडिया की फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम किसने की? 3 लोगों के नाम, एक का नाम गलत। पर कैपिटा इनकम उस टाइम पीरियड पे कितनी थी, नेशनल इनकम उस टाइम पे कितनी थी, तीनों में से कौन सी चीज फॉल्स है बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म्स में बन सकता है। नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट, रुपीज ऑफ नेशनल इनकम, रुपीज ऑफ पर कैपिटा इनकम। सो यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट वाज द सिचुएशन इन द आपका नेशनल पर कैपिटा इनकम का था।
ठीक है जी, shall we move? Now they said that इंडिया में नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है? कैन यू आंसर? थोड़ा सा कुछ भी, क्या लगता है आपको कौन होगा? नहीं, नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? कोई कमेटी होगी ना पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। फाइनेंस कमीशन तो 15th फाइनेंस कमीशन है, वो तो बाद में आया, अभी नहीं। कैन यू? कोई बात। स्टार्टिंग विथ CSO। व्हाट इज CSO? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। Central Statistical Organization, CSO. Again, that is Central Statistical Office. The name has been changed of CSO from office, organization to office. And then further we have shifted to the National Accounting Statistics. Committee भी हो सकता है, I think. Statistics. These are the calculating agencies जो हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती आई हैं शुरू से। अभी हमारे पास रीसेंट NSSO, NSO की जगह नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स है। नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स ये हमारी 1940, 48, 49 में इसका नाम चेंज हुआ था। तो कुछ लोग अभी भी NSSO को दोनों ही नाम से जानते हैं, दैट इज फॉर द ऑफिस एंड द ऑर्गेनाइजेशन। सो यू मस्ट बी नोइंग दैट नेम हैज बीन चेंज इन 1949, ऑलमोस्ट लाइक 1949। यस, ये जो चेंज हुआ है 1949 में इसका नाम चेंज हुआ है। CSO का CSO ही स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ दिस इज द आफ्टर इंडिपेंडेंस 51 में जब हमने नई कमेटी बनाई, 51 में बनाई ना हमने कमेटी, जब हमने तीनों चारों लोगों को बनाया था, इकट्ठा किया, तो ये तब से ही बन गया नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स। गेटिंग? सो दीज आर द एजेंसीज, दोज आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फॉर इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो यू मस्ट बी नोइंग डेटा कलेक्शन कर कौन रहा है। नेवर गिव द नेम ऑफ NSSO, कभी मत दीजिएगा। ये दिखता एक जैसा ही है, सोचोगे NS गलती से लग गया। दिस इज नेशनल सैंपल सर्वे। इनकम कभी भी सैंपल के सर्वे से नहीं कर सकती। 5 लोगों की इनकम में एक के डेटा से निकालकर कभी इंडियन इकोनॉमी का डेटा नहीं बना सकती। तो दिस इज द सैंपल सर्वे, सो इट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय CSO। ठीक है, अभी ये भी वैसे दोनों कंबाइंड हो गए, बट चलो। Getting? So we are saying that is calculated by NSO, National Statistical Office, from the organization, and the recent the committee or the data source is your NAS, National Accounting Statistics. Further, these are the methods afterwards. Rather than giving into the methods, I believe I need to give a bit of करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस, बेस ईयर एंड नॉमिनल प्राइस, वो थोड़ा सा बता देते हैं। नेशनल इनकम का हल्का सा टॉपिक थोड़ा बड़ा और बड़ा है अभी। सो करंट प्राइसेस एंड द कांस्टेंट प्राइस, हम छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं ताकि आप लोगों को मोनोटोनस ना लगे, दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम इन अ लॉन्ग वे। आप एक छोटा सा टॉपिक समझ लें, वो कंप्लीट हो जाए, बात खत्म। आपने सेक्टर्स पढ़ लिए, इट्स साइड बाय, यू गॉट टू नो गुड्स, साइड बाय, यू गॉट टू नो अबाउट किसने बनाया, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, गॉट साइड, यू गॉट टू नो कौन सी एजेंसीज बनाती हैं, एक साइड हो गया। अब आप सिर्फ करंट और कांस्टेंट प्राइसेस का डिफरेंस समझिए, फिर आप बेस ईयर और करंट ईयर का प्राइस समझिए, फिर नेशनल इनकम पे आते हैं, ताकि आपके बेसिस क्लियर होते रहे। जब हम आपसे बात करें जीडीपी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो आपको वो दोनों टर्म्स के बारे में पता हो।
रेदर देन मैं पहले आपको बताऊं जीडीपी एट मार्केट प्राइस और करंट प्राइसेस, तो आपको दोनों टर्म्स नहीं पता, फिर मुझे उसके लिए सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो वी आर गोइंग थ्रू विद द करंट प्राइसेस एंड द कांस्टेंट प्राइसेस. Obviously, we're talking about national income, current prices, the constant prices. Done? जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज ऑन द बेस्ड ऑफ टू. वन इज ऑन द करंट बेसिस एंड वन इज ऑन द constant basis. Now, constant prices tells us about, current prices tells us about आज मार्केट में उसका करंट प्राइस क्या है किसी भी कमोडिटी का, नेशनल इनकम का, आउटपुट का, जीडीपी का. एंड करंट प्राइसेस सेज दैट व्हाट इज योर प्राइसेस ऑन द बिहाफ ऑफ योर बेस ईयर. कंपैरेटिव एनालिसिस, इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बेस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं. व्हाट इज द बेस ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल? नेवर. अभी का बेस ईयर क्या चल रहा है? 2000? नहीं, वो तो करंट भी नहीं हुआ, वो तो करंट हुआ 23-24, तो वो तो करंट ईयर है. नहीं, 2011-12 क्या हो गया? आप तो बिल्कुल ही रेंडमली आंसर्स दे रहे हैं, कोई बात नहीं. 2011-12 इज इन अ बेस ईयर व्हिच इज वी आर कंपेयरिंग आवर इकोनॉमी विद दैट्स. ये वैसे शिफ्ट होने वाला है, इसके एस्टिमेट्स आ गए हैं. 2014-15 हम शिफ्ट करेंगे, हम नहीं करेंगे, मींस इकोनॉमी गोना शिफ्ट आउट द बेस ईयर फ्रॉम 2011-12 टू 14-15 अभी, इसीलिए मुझे आपको लग रहा था बताना जरूरी है. अब सारी स्टोरीज के ऊपर आएगी, अदरवाइज आई वांट टू लीड अप विद द कंपैरिजन, बट यू डोंट नो अबाउट द बेस ईयर, तो आई हैव टू एक्सप्लेन द बेस ईयर फर्स्ट. बेस ईयर होता है जिस ईयर के साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं. हमेशा से बेस ईयर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं. बेस ईयर बहुत दूर नहीं होना चाहिए. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 12 इयर्स बैक, 10 इयर्स बैक. तो हमें ये पता चलता है इकोनॉमी 10 साल में कितनी दूर पहुंची है, कितना डेवलपमेंट आया. आज आप 100 रुपीज कमा रहे हैं, 2011-12 में आप 100 रुपीज कमाते थे, तो दोनों की परचेजिंग पावर क्या थी? आज 100 रुपीज कितनी चीजें खरीद के देता है? 2011-12 में हाउ मच कमोडिटीज यू कैन बाय विद सेम ऑफ मनी. इसका डिफरेंस क्या बताएगा? प्लीज आंसर. वेरी नाइस, थैंक यू. इट विल टेल यू द इन्फ्लेशन रेट. हमने आपसे कहा ना 100 रुपीज आज है, 100 रुपीज उस टाइम थे. आपकी परचेजिंग पावर विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज चेंजिंग. व्हाई इट इज चेंजिंग? बिकॉज इन्फ्लेशन आ रहा है. आपके लिए आने वाले टाइम में वही 100 रुपीज 10 रुपीज हो जाएंगे. बेस ईयर शुड नॉट बी लाइक एनी ऑफ द ईयर विच इज लाइक पैंडेमिक. मैं 2019 को बेस ईयर कभी नहीं बना सकती. क्यों? हो सकता बेस ईयर 2019-20 को हम क्यों नहीं बना सकते? वो एक नॉर्मल ईयर नहीं था, है ना. उस टाइम में आपकी जीडीपी तो वैसे कम थी, तो फिर उसको देख के तो आप आज कहेंगे हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है. तो हम अपने आप को हमेशा बुरे से थोड़ी कंपेयर करेंगे, या बहुत ही बिल्कुल हाइप हुआ हो किसी इकोनॉमी का उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे. हम हमेशा एक नॉर्मल ईयर को अपना बेस ईयर बनाते हैं जिसके साथ हम अपने आप को कंपेयर कर सकें, जस्टिफाइड कंपेयर कर सकें. नॉट सो लॉन्ग 1950 को आज नहीं कंपेयर कर सकते और पिछले साल को भी नहीं कंपेयर कर सकते. तो एक नॉमिनल सा डिफरेंस, ना उसमें कोई पैंडेमिक हो, ना उसमें कोई अर्थक्वेक हो, ना कोई वॉर हो. कोई भी ऐसा ईयर नहीं लेना जिसके साथ आप अपने आप को कंपेयर करो कि उस साल में आपकी जीडीपी, आपका आउटपुट, आपका प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ. आपने वैसा ईयर नहीं लिया. तो वी हैव टेकन 2011-12 as a base year that is to be supposed to be shifted as we are moving ahead. 23-24 आ गया ना, तो फिर 10 साल 8 साल का फर्क रखने के लिए 2014-15 हम एक्सपेक्टेड है कि शिफ्ट कर देंगे. तो बेस ईयर इज जस्ट फॉर द कांस्टेंट प्राइसेस. जब अपने आप प्राइसेस को कंपेयर करते हैं बेस ईयर के साथ, तो वो हमारे कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं ना. ये आपके जो कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं, इसको आप रियल प्राइस भी बोलते हैं और इसको आप नॉमिनल प्राइसेस बोलते हैं.
So whenever they are saying कि nominal price, it means they are talking about the current prices, and whenever they are saying about real price, it means they are talking about the current prices. किसी भी इकोनॉमी की एक्चुअल हेल्थ किससे रिप्रेजेंट होएगी? दोनों में से? प्लीज आंसर. किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ मींस कि इकोनॉमी डेवलप कर रही है या इकोनॉमी स्टेगनेंट है. हाउ इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग? एक आंसर दीजिए. यस, रियल प्राइस. क्यों? व्हाई नॉट करंट और द नॉमिनल? क्योंकि ये तो आपके आज के प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है कि हाउ मच प्रोडक्शन इज डन बाय योर कंट्री विद ऑल थ्री सेक्टर्स. वो इन्फ्लेशन को नहीं बता रहा. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. Your money, your GDP, your output, your national income is ₹100. मार्केट में किसी चीज का प्राइस 10 रुपीज है. आप कितनी कमोडिटी खरीद सकते हैं? 10 कमोडिटीज आप बाय कर सकते हैं. आपकी मनी वैल्यू 100 से, दो एग्जांपल्स होंगी. आपकी मनी वैल्यू ₹100 ही है, लेकिन प्राइस बढ़ के 20 हो गया. आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीडीपी में इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन आपकी परचेजिंग पावर फॉल डाउन हो. आपकी रियल इनकम कम हो. रियल इनकम मतलब आपकी एक्चुअल परचेजिंग पावर कम हो गई, इवन दो योर इनकम रिमेन्स कांस्टेंट. लेट्स गो फॉर वन एग्जांपल. आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई, प्राइसेस भी बढ़ गए. आपकी क्वांटिटी बाय कितनी है? उतनी. तो ये तो बता रहे हैं कि अच्छा हुआ है देश में. 100% आउटपुट बढ़ गया. It shows there is a growth in economy, but it shows nothing is going into your pocket. आप उतने का उतने कमोडिटी बाय कर पा रहे हैं, आपके पास तो कोई ग्रोथ नहीं हुई. तो ये फेक ग्रोथ हुई ना. तो ये ग्रोथ, ये वाली ग्रोथ अगर देखते हैं, ये कौन सी है? करंट वाली. कि पहले 100 कमाते थे, आज यू आर अर्निंग 200 रुपीज. सो इट मींस द करंट प्राइसेस पे आपकी ग्रोथ दिख गई कि यस इकोनॉमी इज डेवलपिंग. बट रियल लाइफ में इकोनॉमी की ग्रोथ तो दिखी नहीं, बिकॉज परचेजिंग पावर इज 10 only. So we need to find out inflation rate. That is representing by the constant prices. This is called real prices. Getting it? So that is important to understand that whenever we are talking about economic growth, that is to be measured on the behalf of real prices rather than the nominal prices. ठीक है जी? Further we can say it is also called a face value. ऑब्वियसली बढ़ गया ना. नंबर कितना दिख रहा है, जो कि इन एक्चुअल में नहीं होता. सिर्फ वो हमें दिख रहा होता है कि प्राइसेस बढ़ गए, सॉरी क्वांटिटी बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई. रियल नहीं होती है वो, सिर्फ फेस वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है. जबकि हमारी ये कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्शन वैल्यू. द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स. कि इन्फ्लेशन को हटाने के बाद रियल में कितना आपका एब्स्ट्रैक्ट हुआ, कितना रिजल्ट्स आए. Getting over? So you can write down abstract value. This is called a real value. It is for reduction with the inflation. Inflation को हटाने के बाद आता है वो. ये inflation के साथ होता है. Then third one is its prices in the real life. It is prices is to be related to the base year compared to. ये comparative होता है. It is at stagnant, at current price. Real life. Real life uses के लिए. So you need to understand that current prices are only representing a real face picture, and it is representing a abstract value. It is to the current value. It is to be on base of base year prices. ये हमारी नॉर्मल वैल्यू को डिडक्ट कर देता है क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता है. तो जितनी जीडीपी हुई वो ये है. जीडीपी में एक्चुअल क्या है वो ये कि रियल में ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ. दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द करंट प्राइसेस. सो वी कैन टेक वन मोर थिंग वी कैन से. क्या हम अगर रियल प्राइस को एक फॉर्मूला ले सकते हैं, इसी में लिख लेते हैं.
अगर हमें रियल प्राइस निकालना है तो वी कैन से नॉमिनल प्राइसेस अपॉन CPI into 100. Now you will ask, I don't want to write on the formula, but it's required to let you know. But a concept of CPI is missing. So you don't know what is CPI? Current price index, the consumer price index, and the consumer price index itself represents the consumer price index represents the inflation. Price index क्या बता रहा है? इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हमारा WPI भी होता है, वो क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये हम टॉपिक तब करेंगे जब हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन के टॉपिक में हमें ये पता चलेगा कि CPI और WPI दोनों में अलग अलग क्या है। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल ग्रोथ, जितना एक्चुअल में हुआ है, जितनी परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन आ गई उनको 100 से मल्टीप्लाई करो। दैट रिप्रेजेंट्स योर रियल ग्रोथ रेट और रियल प्राइस इन द मार्केट। So we have an example of this, एक एग्जाम्पल कर सकते हैं इसका, वो जो हमने 110 वाला किया ना वैसा सही इन्फ्लेशन दिखा सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ गई और GDP भी बढ़ गई, तो एक्चुअल में ग्रोथ बताओ कितनी हुई कि 100 से 200 तो GDP बढ़ा, 10 रुपीज से 20 रुपीज इन्फ्लेशन भी बढ़ा। अब बताइए कि रियल GDP बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। सो दैट रिप्रेजेंट्स द बोथ ऑफ द चेंजेस, द CPI as well as the nominal GDP, and that represents the real GDP. Done? What else we can add is that's it. That's much more than that of the real and the current. Done? ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए और बेस ईयर पता होना चाहिए क्या है, बेस ईयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। Done? So here we will talk about the basics of. अभी इसमें आपको एक चीज और पता चल गई, करंट ईयर एंड बेस ईयर। करंट प्राइसेस से ही करंट ईयर भी निकल के आ गया। करंट ईयर होगा 2022, 23, 23, 24, बेस ईयर होगा 2011। जब भी हम करंट ईयर की बात करते हैं तो अब की फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, बेस ईयर की बात करते हैं 2011-12 में प्राइसेस क्या थे और आज प्राइसेस क्या हैं, उनका डिफरेंट CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इतने टाइम पीरियड में कैसे कन्वर्ट है। गेटिंग? So that's a bit of the part of the national income. A small part is just left out. I feel you people are already drained with this so much of topics. So please go through with the topic and have a glance of the same which we have done. That's available on your NCERTs as well. And if you want something from my side, I can provide you a bit of things. That is just a crux. Okay? And you must have your material with you. I asked yesterday as well. Please try to find out the questions related to the topic we have done. ऐसे टॉपिक्स करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा जब तक आप उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चंस नहीं करते। आपको तब पता चलेगा कि मैंने टॉपिक में क्या और पढ़ने की जरूरत थी, कि टॉपिक जितना पढ़ा उसमें से कुछ आंसर्स हम निकाल पाए। सो प्लीज गो थ्रू विद दैट so that you can find out some of the exercises, and once we will complete 4 to 5 topics, I will go for the revision. I'll ask you the questions online over there only, and we will go for a test kind of series. But before that, I want you to be confident about the topics. So hopefully you are over with the topics. The yesterday session and the today's session will continue with the same. I would like to explain the bit of the topic of national income, सिर्फ methods, एक एग्जाम्पल है वो डाल के फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।